When should you not argue with someone? Not how to argue, not how to win, not how to convince people, but when arguing itself is the wrong move. Most people think communication fails because they didn't explain well enough. In reality, communication fails because they spoke at the wrong time, in the wrong state, using the wrong tool. This video is about learning to spot that moment clearly before you waste words, energy, or self respect. इसका एक डायरेक्ट आंसर है, यू शुड नॉट आर्ग्यू व्हेन द अदर पर्सन इज नॉट इन अ रीजनिंग स्टेट. अगर उसका दिमाग लॉजिक प्रोसेस कर ही नहीं रहा है तो आर्ग्यूमेंट्स काम करेंगे ही नहीं. इफ रीजनिंग इज ऑफलाइन, आर्ग्यूमेंट क्रिएट्स फ्रिक्शन नॉट क्लैरिटी. बस आर्ग्यूमेंट ही होगा, तुम लोग किसी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं पहुंचने वाले. दैट इज वेयर मोस्ट पीपल गो रॉन्ग. दे अज्यूम दैट बीइंग राइट इज इनफ, बट बीइंग राइट डज नथिंग इफ द अदर पर्सन कैन नॉट रिसीव इंफॉर्मेशन. समझ रहे हो? Communication is not about truth alone, it is about timing, state, and capacity. ये वीडियो किस बारे में? This video is not about how to argue better. It's also not about persuasion, debate, or sounding intelligent. This video is about learning to recognize when arguing is pointless. Once you understand this, you stop talking, you stop taking failed conversations personally. You realize the problem was never your explanation. The problem was that you were trying to communicate with a system that was not available to communicate back. And जब यहाँ पे मैं सिस्टम बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि तुम इस इंसान को समझ नहीं पा रहे हो वो क्या करना चाहता है, या उसके मेंटल स्टेट को नहीं समझ पा रहे. इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ व्हाई आर्ग्यूमेंट्स फेल इवन व्हेन यू आर राइट, द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग एंड डिस्कशन, the one diagnostic question that decides whether you should speak or not, and कुछ real life situations where arguments usually fail. High stress situations, ego driven situations, power imbalance situations, public or crowd situation, calm and private situations, only the exception. And मैं इन सबको personally कैसे handle करता हूँ. And also one rule that ties it all together. पहले explanation में जाते हैं. मेरे को ये 3 चीज़ explain करना है. Number 1 reason, Number 2 reasoning, नहीं, Number 1 arguing, reasoning and discussion. ये 3 चीज़ है. Most people treat these as the same thing. They are not. And confusing them is one of the fastest ways to damage relationships, escalate conflict and lose control in conversation. सबसे पहले मैं बताऊंगा argue का मतलब क्या होता है. Arguing is trying to prove a point or win a disagreement. समझ रहे हो? या तो एक पॉइंट प्रूफ कर रहे हो, या तो किसी डिसएग्रीमेंट में तुम जीत रहे हो. ईगो इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, पोजीशन भी इन्वॉल्व होता है, एंड एक नीड कि भाई मेरे को सही होना है. इसका मतलब है, ये मैं आर्ग्यू का डेफिनेशन बता रहा हूँ. आर्ग्यूमेंट अज्यूम्स दैट बोथ पीपल आर ओपन टू बीइंग रॉन्ग. द मोमेंट वन पर्सन इज डिफेंडिंग देयर आइडेंटिटी, इमेज, स्टेटस, ये 3 चीज़ अगर वो सोच रहा है तो फिर आर्ग्यूमेंट स्टॉप्स बीइंग अ टूल एंड बिकम्स अ थ्रेट, क्योंकि वो बहुत चीज़ पर्सनली लेना चालू कर दिया है. That's why arguments fail so often in real life. Not because people are stupid, but because their ego hijacks attention and shuts down listening. अभी मैं बताऊंगा रीजनिंग का मतलब. रीजनिंग इज नॉट अबाउट विनिंग. रीजनिंग इज अबाउट एक्सचेंजिंग लॉजिक टू रीच अंडरस्टैंडिंग. Reasoning requires calm. It requires attention. It requires time. When emotions rise, the brain prioritizes protection over comprehension. समझो, इसका मतलब है लॉजिक समझ में नहीं आता और लॉजिक को वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं. उस समय एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, वो चीज़ें और बर्बाद करता है. थर्ड इज डिस्कशन. डिस्कशन इज एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे दो पार्टी आके कुछ चीज़ एक्सप्लोर करती है, उस पर थोड़ा बैठ के कन्वर्सेशन करने की कोशिश करती है. यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात नहीं होती, यहाँ पे कोई कुछ प्रूव नहीं कर रहा होता है. डिस्कशन ओनली वर्क्स व्हेन बोथ साइड्स फील सेफ इनफ टू थिंक आउट लाउड. The moment someone feels judged or cornered, discussion falls apart. ऐसे ही होता है. Most people, they believe they are having discussions. In reality, they are negotiating validation. अब जो एक क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ, before you speak, there's only one question that matters: is the other person in the reasoning state right now, or are they reacting? दो स्टेट होता है, क्या वो रिएक्ट कर रहा है या फिर वो रीजन कर रहा है. मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में लोग इमोशन में इतना आ जाते हैं कि वो बस रिएक्ट करते हैं, फटने. कुछ भी बोलो उसको वो ऑफेंसिव वे में ही लेंगे. उस समय तुम्हें रुक जाना है.
It shifts your focus from what you want to say to what the situation can actually handle. Once you ask this, you stop forcing conversation that are structurally impossible. जनरली ऐसा होता है कि तुम किसी सिचुएशन में तो सोच रहे हो कि यार मैं सही हूँ, मैं उसको अपना पॉइंट बताता हूँ, बट जब आगे वाला सुनने की क्षमता में ही नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दैट्स द थिंग। उस समय यू जस्ट हैव टू बैक ऑफ। कुछ इन्वायरमेंट्स जहाँ आर्ग्यूमेंट करना फेल हो जाते हैं। एंड व्हाट आई वुड डू, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर आर्ग्यूइंग फेल्स almost every time, not because the point is wrong, but because the situation does not allow reasoning to exist. Once I started seeing these patterns, I stopped trying to force conversation that were never going to work. Number one, high stress, fast moving situations. Scenario kya? You are in a situation where things are already tense and moving fast. Someone makes a sudden move, voices are loud, people are impatient. There's no pause, no breathing room. In these moments, the other person isn't listening to understand. They're listening to respond or to defend. द सिस्टम इज ऑलरेडी इन रिएक्शन मोड। इस समय में किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है, सब रिएक्ट कर रहे हैं, सट 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 सट, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, इमोशंस एकदम ऑन द राइज है। इसमें क्या करना है, तुम्हें ना खुद को एक्सप्लेन करना है, ना खुद को जस्टिफाई करना है, और आगे वाले को लॉजिक समझाने की भी कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो उसको भी ऑफेंसिव वे में ले लेगा कि यार ये मेरे को गधा बोल रहे हैं। उस समय सोचो कि यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता है, इस जगह से मैं जितने शांति से और अच्छे से निकल सकता हूँ निकलने की कोशिश करो। जो बर्बाद हो रहा था, हो गया था, उसको छोड़ दो, वहाँ से कटो। यही एक तरीका है, नहीं तो तुम उस पे डेवलप करते रहोगे और तुम्हारा मेंटल पीस भी खराब होगा। और अगर तुम बात कर भी लोगे तो तुम कहीं रीच नहीं कर रहे हो, क्योंकि आगे वाला बंदा लॉजिक या रीजनिंग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। नंबर टू, ईगो थ्रेटनिंग सिचुएशंस। सिनेरियो क्या है, यू पॉइंट आउट समवंस मिस्टेक, मे बी नॉट अग्रेसिवली बट इट लैंड्स दैट वे। देयर पोस्चर चेंजेस, देयर टोन शार्पन्स एंड दे स्टार्ट डिफेंडिंग देमसेल्व्स। खुद को डिफेंड कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट के पॉइंट को नहीं। एट दिस पॉइंट द टॉपिक डजंट मैटर एनीमोर। दे आर प्रोटेक्टिंग द आइडिया, दे आर प्रोटेक्टिंग देयर इमेज। उनके मन में जो इमेज है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई मैं गलत हो गया, भाई मैं गलत हो गया। उनके मन में यह है कि नहीं कि पॉइंट गलत है, मैं गलत हो गया। एनीथिंग यू से आफ्टर दिस विल बी फिल्टर्ड एज एन अटैक। यहाँ पे जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट को पुश करना थोड़ा सा रोक देता हूँ कि ठीक है, अभी इस पे और मैं पुश नहीं करता हूँ, और मैं इसको लॉजिक समझाने की भी कोशिश नहीं करूँगा। इफ इट्स इंपॉर्टेंट, आई वेट फॉर डिफरेंट मोमेंट व्हेन द ईगो इजंट ऑन द लाइन, एंड मैं बाद में जाके उनसे इस बारे में कभी बात कर सकता हूँ वन ऑन वन। समझ रहे हो? उसी समय मेरे को किसी किसी उसी समय मेरे को किसी रीज़न या लॉजिक पे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको बाद में आ सकता हूँ कि बाद में भी हम लोग इस पे कर सकते हैं, और अगर टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, पॉइंट इतना बड़ा नहीं, तो उसको छोड़ दो, डज़न्ट मैटर। बट अगर है कुछ, तो उसको बाद में ऊपर लाओ जब वो इंसान शांत होगा, और उसको ढंग से ऊपर लाना है। नंबर थ्री, पावर इम्बैलेंस इंटरैक्शन। ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था। यू आर टॉकिंग टू समवन हु हैज़ अथॉरिटी ओवर आउटकम्स। They decide what happens next. Even if you are right, they don't need to agree with you. You start explaining yourself. They stop listening halfway through. This isn't a conversation anymore, it's a structure. मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, जब मैं इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पे मेरे एचआर के साथ लड़ाई हुआ था। तो वहाँ पे मैं कुछ भी बोल दूँ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे से ऊपर है, वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारे मोरल्स या प्रिंसिपल जो भी हो, तुम्हें डिसाइड करना है क्या करना है तुम्हें, बट तुम आर्ग्यू करके भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। I reserve what actually influences decision in that environment. Sometimes I comply, sometimes I disengage, and sometimes I leave the situation entirely. But I don't waste energy arguing when leverage matters more than logic. उस समय मेरा एक असाइनमेंट चल रहा था, मैंने बोला अभी इससे बहस कभी कुछ नहीं होगा, यहाँ से निकलते हैं, अपने असाइनमेंट फोकस करता हूँ, इसके बाद जो होगा देख लेंगे। नंबर फोर, पब्लिक और क्राउड सेटिंग्स। सिनेरियो, a disagreement happens in front of other people, friends, colleagues, or strangers. Even if the other person realizes you are right, admitting it publicly causes them face. So they resist harder. The presence of an audience turns a conversation into a performance. जो यहाँ पॉइंट 2 में हो रहा था, जहाँ पे उनके ईगो पे बात आ गई थी, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। I don't push for resolution in public. I don't corner them. If it matters, I bring it up later in private. सेम चीज़, प्राइवेट में आराम से बात कर सकते हो तो करो, क्योंकि उस समय तुम्हें अपना पॉइंट जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे बैड ब्लड बोलते हैं वो आ जाएगा। क्योंकि तुम सोच के देखो, अगर तुम किसी पॉइंट पे गलत हो और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यार मैं गलत कैसे हूँ, तुम उस समय समझ सकते हो कि हाँ ठीक है, मे बी देयर इज़ अ सॉल्यूशन
देयर इज़ अ वे दैट आई कैन बी रॉन्ग, हो सकता है, ऑब्वियसली, मतलब कि ज़िंदगी में कौन आज तक हमेशा सही हुआ है? एंड या एंड कमिंग ऑन टू नंबर 5, काम प्राइवेट सेटिंग्स, द ओनली प्लेस आई रीज़न, वन ऑन वन कन्वर्सेशन, कोई रश नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, जहाँ पे दोनों शांत हो सकते हैं, दोनों बैठ के सोच सकते हैं। मैं जो बोलूँगा वो सुन रहा है, वो जो बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ओह! दैट्स व्हाई, गेटिंग इट? I explain, I listen, I just not because the people are better, but because the environment allows reasoning to exist. बाकी सब सिचुएशन में ईगो आ रहा है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है लोगों की, भाई यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, ये है वो है, और मैं ऐसे हैंडल क्यों करता हूँ? आई एम नॉट अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, आई एम चूजिंग द राइट कम्युनिकेशन टूल। मेरे को उसी समय सही होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उस समय सही होके क्या मेरा ईगो फ्री हो जाएगा, और जो रिलेशनशिप बर्बाद करूँगा उसका क्या? अगर 2 मिनट शांत होके मैं खुद सोच लूँ कि यार मेरा ये चीज़ बोलना है, इसकी ईगो टारगेट कर सकता है। भले ही मैं कितने अच्छे वे में बोलूँ, अभी सही समय नहीं है, क्योंकि कभी-कभी समय सही नहीं होता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। मोस्ट आर्गुमेंट्स डोंट फेल बिकॉज़ ऑफ बैड वर्ड्स, दे फेल बिकॉज़ ऑफ बैड टाइमिंग। व्हाई डिसएंगेजिंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन फेलियर। Walking away is often mistaken for weakness. In reality, is it often restraint? Good communication is not about expressing everything you think, it is about choosing the right tool for the situation. Using argument where reasoning isn't available is not bravery, it's poor calibration. The real mistake people make, जो मैं देखा हूँ लोग make करता है, the mistake is not arguing badly. The mistake is arguing at all when reasoning is unavailable. आगे वाला सुन रहे तो तुम कितना ही बोल लोगे? तुमने वाला मीम देखोगे कि आगे वाला चिल्ला रहा है, दूसरे साइड में बंदर ऐसे देखता है, सेम थिंग, बट वो रेज वेट कर रहा है, यहाँ पे सिचुएशन अलग है। Once you see this, you stop replaying conversations in your head. You stop wishing you had said something smarter. You realize nothing you could have said would have landed anyway. इसका समरी क्या है? आर्ग्यूमेंट को लगता है रीजनिंग, इस रीजनिंग में लगती है कि माहौल शांत हो, और अगर शांति नहीं होगी तो रीजनिंग भी नहीं होगी, और अगर रीजनिंग नहीं होगी तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा। दिस वन रूल रिमूव्स अ सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम डेली लाइफ। अब इससे अगर एक चीज़, जो एक एक्शनेबल टेक अवे तुम ले सकते हो, वो है द नेक्स्ट टाइम यू फील द अर्ज टू आर्ग्यू, डू 3 थिंग्स। सबसे पहले रुको, दूसरे पर्सन के स्टेट को ऑब्जर्व करो। ऑल्सो पॉज़ करना बहुत अच्छा लगता है, और एक बार साँस लेना, क्योंकि जब किसी कन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट या हीटेड सिचुएशन में तुम होते हो, तो तुम्हें खुद को भी शांत करना होता है, क्योंकि तो बात तुम्हारे भी ईगो पे आ जाती है। उस समय 2 मिनट शांत हो जाओ, कुछ स्मार्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। सोचो कि क्या आगे वाला रीज़न कर सकता है? कि आगे वाले में इतनी क्षमता है? अगर क्षमता है तो क्या वो ईगो बीच में नहीं लाएगा? फिर सोचो कि क्या तुम्हें उसमें जाना है? अगर नहीं जाना है, आगे वाला रीज़न नहीं कर पा रहा, आगे वाला कुछ ना कुछ करके बर्बाद कर देगा, रुक जाओ, पतली गली से कट लो। तुम वीकनेस दिखा रहे हो तो अपना टाइम और मेंटल स्टेट बचा रहे हो। सही होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को तुम्हें ठीक नहीं करना है। अपने आप धीरे-धीरे चीज़ें होंगी, पहले खुद को सुधारो, आजू-बाजू अपने आप सब ठीक होगा। Decide whether reasoning is available. If it's not, disengage, not because you're scared, because you're aware. And closing statement, not every situation deserves your words. Sometimes the smartest form of communication is knowing when not to use it. So, this is all. इन सब चीज़ों को अपने मन में रखो, एंड जब भी नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट या कॉन्वर्सेशन होगा तुम्हारे किसी के साथ बहुत ज़्यादा हीटेड हो क्या, रुको, सोचो क्या हो रहा है, आगे वाला रीज़न कर रहा है क्या, तुम उस मेंटल स्टेट में हो, क्योंकि कभी हमारी भी गलती होती है, हम भी एस्केलेट करते हैं, हमें नहीं करना एस्केलेट, कट लो। उस समय बोल दो कि बाद में आके बात करूँगा प्यार से। ऑलराइट, दैट्स ऑल, सी या, बाय बाय।